Hello all GATE CS aspirants. I'm Amit Goel. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of theory of computation, and in this session we are discussing about grammars. More specifically, we will discuss about what are the types of grammars and how do we interpret languages given a grammar. How do we find what is the language which is generated by that grammar? That is what we are going to discuss in this session. राइट तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें यह समझना है कि ग्रामर के क्या टाइप्स हैं, वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे पास 4 तरह की ग्रामर्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, हम लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन ऑफ ए ग्रामर, जो ग्रामर जो लैंग्वेज जनरेट करती है, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम उसे कैसे फाइंड आउट करें। Alright, so let's first of all see where we stand right now in the course, right? So first of all, regular languages are accepted by finite automata. मतलब finite automata regular languages को accept करता है। हमने कौन-कौन से finite automata डिस्कस किए? हमने डिस्कस किया NFA, हमने डिस्कस किया DFA, हमने डिस्कस किया एप्सिलॉन NFA। सभी के सभी finite automata they accept regular languages, इन सब की पावर सेम है। ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है जो एक तरह का finite automata accept करता है और दूसरे तरीके का finite automata नहीं करता है। तो सबके सब फाइनाइट ऑटोमेटा जितने, जैसे हमने बात की एप्सिलॉन NFA और DFA, सभी के सभी सेम सेट ऑफ लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करते हैं, जिन्हें कि हम रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं, राइट? सो रेगुलर लैंग्वेजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशंस, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ यू रिमेंबर, वी हैव क्लियरली डिस्कस्ड रेगुलर एक्सप्रेशंस आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच रिप्रेजेंट्स रेगुलर लैंग्वेजेस. We have already taken 2 sessions on regular expressions, and in finite automata we took almost 7 sessions, and also we discussed 1 practice session on finite automata. Now the context is regular grammars. Regular grammars are the ones which generate regular languages. Regular languages को generate करने के लिए हमें regular grammars की जरूरत है. Alright? So this terminology is exactly similar to what we have in our day-to-day life. Right? जैसे in day-to-day life languages, right? If I say specifically, for example, अगर हम English language की बात करें, तो English language को अगर हमें generate करना है, तो हम English grammars के basis पे हम language को generate करेंगे। Grammar हमें बताती है कि पहले subject आएगा, फिर verb आएगा, फिर object आएगा, उससे हम English grammar के English language के sentences को generate करेंगे, जिससे finally हम English language को भी generate कर पाएंगे। Alright? So this terminology is exactly same. It has been taken from the same context. The context has been taken from general languages only, right? There is a straightforward analogy between the two things, right? So let's first of all, in this session, as I said, we will be discussing about grammars in detail, all right? So what is grammar? So first of all, it is represented by a quadruple. तो यहां पे अब 4 एंटिटीज हैं जो कि एक ग्रामर को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट? सो देयर आर 4 एंटिटीज व्हिच रिप्रेजेंट अ grammar. 4 things are there, that is V, T, S and P. So what is this quadruple? Let us try to understand. So V is the set of vertices, T is the set of terminals, S is basically the start symbol, and P is the set of productions. Alright? तो हमने क्या बात की कि क्वाड्रपल जो है, जो अगर हम हर एंटिटी की बात करें इस क्वाड्रपल में, तो V is the set of vertices, or we also call it as variables, or we also call it as known terminals. T is the set of terminals, and S is basically the, so again both these are sets. S is the start symbol. There is only one start symbol, just like we have the start state in the finite automata that we discussed. There is always one finite, there is always one initial state, there is always one start state. Similarly, there is always one start symbol. All right, this is not a set. Now P is the set of productions, right? तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. Let's see one example of grammar. यहां पर हमें 5 प्रोडक्शंस दिखाई दे रही हैं. S goes to AB, A goes to AA, A goes to small a, then B goes to BB, and capital B goes to small b, right?
तो ये क्या है? सबसे पहले तो ये जो 5 चीजें हमें दिख रही हैं, ये है हमारी प्रोडक्शंस। तो दिस इज द सेट ऑफ प्रोडक्शंस which is your P set, which is your set P. all right, set of productions your set P. now बात करें अगर हमारे पास में स्टार्ट सिंबल की, तो हमारे पास में यहां पर हमारा स्टार्ट सिंबल हो गया S. दिस इज अवर स्टार्ट सिंबल. अगेन अगर एक प्रोडक्शन को हमें पढ़ना है तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट. मतलब इस लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट से हम रिप्लेस कर सकते हैं. अगर हमारे पास एस है तो हम उसे रिप्लेस करके उसे ए बी लिख सकते हैं. अगर हमारे पास ए है तो हम उसको ए बी लिख सकते हैं. अदरवाइज हम उस ए को, इस ए को हम ए भी लिख सकते हैं. तो ये जो है बेसिकली है लेफ्ट पार्ट को हम राइट पार्ट से रिप्लेस कर सकते हैं. ऑलराइट, सो ए गोज टू स्मॉल ए कैपिटल ए गोज टू स्मॉल ए, बी गोज टू स्मॉल बी कैपिटल बी एंड बी गोज टू स्मॉल बी. तो ये सारी चीजें हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं. राइट, तो ये हो गई हमारी सेट ऑफ प्रोडक्शंस. स्टार्ट सिंबल हमें पता लग गया. व्हाट आर टर्मिनल्स एंड व्हाट आर नॉन टर्मिनल्स? टर्मिनल्स वो हैं जो आगे एक्सपैंड नहीं हो सकते, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आते. तो कौन कौन सी चीजें हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ रही है मेरी? स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. सो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी इज माय सेट ऑफ टर्मिनल्स. बाकी चीजें जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रही हैं वो सारी की सारी मेरी क्या हो जाती हैं? नॉन टर्मिनल्स, मतलब जिनको हम एक्सपैंड कर सकते हैं. तो वर्टिसेस मेरे क्या हो गए? वर्टिसेस हो गए मेरे एस है, ए है और कैपिटल बी है. राइट, या फिर और बेटर टर्म्स में हम इसे कहना चाहें कि टर्मिनल्स वो हैं जो आपकी स्ट्रिंग में दिखाई देंगे, नॉन टर्मिनल्स वो हैं जो आपकी स्ट्रिंग में नहीं होते हैं. ऑलराइट, बेटर डेफिनेशन ये रहेगी, टर्मिनल्स वो होंगे जो आपके स्ट्रिंग में दिखाई देंगे और नॉन टर्मिनल्स वो होंगे जो आपके स्ट्रिंग में नहीं दिखाई देंगे. ऑलराइट, ओके. सो यहां पर इस केस में कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल बी हमारे नॉन टर्मिनल्स हो गए और जो टी है हमारे जो टर्मिनल्स हैं वो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी रहेंगे. ऑलराइट, तो अब हमें यह समझना है कि इस ग्रामर, ये ग्रामर क्या लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही है. दिस इज आवर इंटेंशन टू स्टडी इन दिस सेशन. हमें यह समझना है कि एक ग्रामर से कौन सा लैंग्वेज प्रोड्यूस हो रहा है. अगर हमें वो समझ में आ जाता है, सो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू इन दिस सेशन. ऑलराइट, सो नाउ देखते हैं इसमें और कोई चीज. आई थिंक एस स्टार्ट सिंबल हम देख चुके हैं. हाँ, सो इस केस में हमने V देख लिया क्या है, T क्या है, S क्या है एंड P क्या है. ये सारी चीजें हम देख चुके हैं. तो आइए अब हम एक बार एक स्ट्रिंग को जनरेट करके देखते हैं. लेट्स सी, हम वी वांट टू जनरेट AABB. अगर मुझे AABB जनरेट करना है गिवन दिस ग्रामर, तो हम इसके लिए क्या बनाते हैं? एक पार्स ट्री. लेट्स सी हाउ टू जनरेट द पार्स ट्री फॉर दिस. राइट, सो लेट मी रब दिस पार्ट एंड ड्रॉ द पार्स ट्री हियर. तो पार्स ट्री कैसे बनाएंगे? जो जो हमें चाहिए हम उस तरीके से चीजों को प्रोड्यूस करते हुए चलेंगे. जैसे कि मान लीजिए S गोज टू AB है, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा. हमें ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस करनी है AABB. S गोज टू AB लिखना पड़ेगा. अब मुझे एज चाहिए, तो मुझे कौन दे रहा है? A दे रहा है मेरे को एज. मेरे को 3 A चाहिए. तो मैं क्या करूंगा? पहले इस A को स्मॉल ए कैपिटल ए से रिप्लेस करूंगा, फिर इस A को स्मॉल ए कैपिटल ए से रिप्लेस करूंगा, फिर इस A को फाइनली सिंगल ए से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे और फर्दर एज नहीं चाहिए, 3 ही चाहिए थे. अब B जो है मुझे 2 चाहिए, तो इस B को मैं किससे रिप्लेस करता हूं? स्मॉल b और कैपिटल B से. और इस B को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? स्मॉल b और कैपिटल B से. और फिर इस B को अगर मैं B से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या होगा? मेरे पास 3 B's आ जाएंगे. तो मुझे पिछले ही स्टेप में इस कैपिटल B को स्मॉल b से रिप्लेस करना रहेगा. तो ये वाले स्टेप पे ही मैं कैपिटल B को स्मॉल b से रिप्लेस कर दूंगा. ऑलराइट, तो अब क्या जनरेट हो गया? AABB जो मुझे चाहिए था. तो अब इससे हम स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं किसी पार्स ट्री से? आपको क्या करना है? जो स्ट्रिंग जो निकलेगी किसी भी पार्स ट्री की, उसे हम बोलते हैं यील्ड ऑफ द पार्स ट्री. लीव्स एनकाउंटर्ड व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट. राइट, सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस आप यहां से शुरू होंगे, टॉप टू डाउन जा रहे हैं. आपको पहला लीफ मिला A, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू डाउन, सेकेंड A, then you found this, then you found this, then you found this, and done. Right, so this is the yield of the parse tree and this is the string which you want to generate, which is generated by this parse tree. all right, तो yield के थ्रू हमें पता लगता है कि वो parse tree क्या प्रोड्यूस कर रहा है. and yield is basically the leaves encountered while going from top to down, left to right.
राइट? ऑलराइट, सो यहां तक हमने समझा है ग्रामर क्या है, उसके कैरोट जो क्वाड्रपल है VTSP क्या है, कैसे एक स्ट्रिंग को जनरेट किया जाता है एक ग्रामर के थ्रू। बट हम जब हम बात करते हैं एक ग्रामर की, तो एक ग्रामर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लैंग्वेज को। अब हमें यह समझना, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हमें यह समझना है ग्रामर किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, किस लैंग्वेज को जनरेट करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंशन है इस लेक्चर का। ऑलराइट, उससे पहले हमें थोड़े से एक दो टर्म्स और समझने हैं, वो समझ लेते हैं। Derivation, the process of deriving the string from the start symbol via sentential forms। तो जो स्ट्रिंग है उसको मैं सेंटेंस भी बोलता हूं। तो जो मेरी स्ट्रिंग थी इस केस में AA, AAA, BB, उस स्ट्रिंग को डिराइव करने का प्रोसेस from the start symbol via sentential forms is known as the derivation, and in derivation only one non-terminal is expanded at a time। जो पार्स ट्री का मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है। अगर हम टेक्सचुअल मेथड से डिराइव करना चाहें तो इसे प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन कहेंगे। कैसे करते हैं, आइए इसी एग्जांपल पे दोबारा से AA, BB डिराइव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टार्टिंग में था S goes to AB, स्टार्टिंग में मेरे पास था S goes to AB। मैंने क्या किया, इस A को रिप्लेस किया। अब मेरे को अब क्या करना है, इस AB से आगे रिप्लेसमेंट कर करके मुझे फाइनली AA, AAA, BB बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस A को रिप्लेस कर दूं स्मॉल a कैपिटल A B से, फिर इस A को रिप्लेस कर दूं स्मॉल a कैपिटल A B, फिर इस A को रिप्लेस कर दूं स्मॉल a से, तो मेरे को इतना स्ट्रिंग मिल गया। फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, B को रिप्लेस करूं, फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, B को रिप्लेस करूं स्मॉल b कैपिटल B से, और फाइनली इस B को रिप्लेस कर दूं मैं स्मॉल b से, जैसे कि मैंने पार्स ट्री में भी किया। तो ये जो टेक्सचुअल मेथड हो गया, इस प्रोसेस को हम डेरिवेशन कहते हैं। पार्स ट्री मेथड भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इस टेक्सचुअल मेथड में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले ये जो चीज है जो लास्ट में मुझे मिल रही है, दिस इज कॉल्ड माय सेंटेंस। और इससे पहले रास्ते में जितने भी सेंटेंसेस आए, जितने भी इंटरमीडिएट फॉर्म्स आए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ये हो गया मेरा स्टार्ट सिंबल, ये हो गए सारे मेरे सेंटेंशियल फॉर्म्स। तो sentential form may contain terminals as well as non-terminals, but my sentence will only contain terminals, क्योंकि string तो सिर्फ टर्मिनल से ही बनती है। ऑलराइट, जो मेरी स्ट्रिंग होगी वो तो हमेशा ही टर्मिनल से ही बनेगी। यानी कि स्ट्रिंग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, अगर हम ऑटोमेटा की बात करें, देखिए ऑटोमेटा का टपल क्या था, Q सिग्मा डेल्टा Q0 और F। ठीक है, यहां पे तो कोई स्टेट है नहीं, यहां पर कोई इनिशियल स्टेट भी नहीं है, यहां पर कोई ट्रांजिशन फंक्शन भी नहीं है, यहां पर कोई सेट ऑफ स्टेट्स भी नहीं है। लेकिन अगर हम सिग्मा की बात करें तो जो सिग्मा है वो था मेरा सेट ऑफ, मेरा अल्फाबेट, सेट ऑफ सिंबल्स, you know the set of symbols which are part of my language, that is basically my alphabet। ये अल्फाबेट डायरेक्टली मैच करेगा, ये अल्फाबेट डायरेक्टली मैच किससे करेगा, मेरे सेट ऑफ टर्मिनल्स से। ठीक है, इन जनरल ये जो सिग्मा होगा मेरा, वो मेरे V के बराबर होगा। सेट ऑफ, दिस इज माय अल्फाबेट एंड दिस इज माय, सॉरी नॉट V बट T, राइट, सेट ऑफ टर्मिनल्स, राइट। जस्ट अ सेकेंड, right, sigma will be equals to T, set of terminals, this is my alphabet, right, all right। तो क्योंकि टर्मिनल्स ही तो प्रोड्यूस होंगे मेरे स्ट्रिंग के अंदर, all right। तो आई होप यहां तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, राइट। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेरिवेशन, वन इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड अदर इज राइट मोस्ट डेरिवेशन। अगर आप हर बार लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करते हैं हर सेंटेंशियल फॉर्म में, तो उसे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहेंगे। एंड इफ द राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल इज रिप्लेस्ड इन एवरी सेंटेंशियल फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड एज राइट मोस्ट डेरिवेशन। तब उसे हम क्या बोल देंगे, मेरी डेरिवेशन क्या हो गई है, राइट मोस्ट डेरिवेशन हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे जाएं तो ये जो डेरिवेशन मैंने किया है ये मेरा क्या है, लेफ्ट मोस्ट। हर बार मैंने लेफ्ट मोस्ट सिंबल को एक्सपेंड किया, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को एक्सपेंड किया, ठीक है। नॉन टर्मिनल की बात हो रही है यहां पे हमारे पास में। तो यहां पर हमने A को एक्सपैंड किया, सबसे पहले अगर मैं देखूं इस केस को, इसमें यहां पे A को एक्सपैंड किया, फिर इस A को एक्सपैंड किया, फिर इस A को एक्सपैंड किया, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल यही है। फिर इस B को एक्सपैंड किया, फिर इस B को एक्सपैंड किया। तो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल हर बार अगर मैंने एक्सपैंड किया तो मेरे को क्या मिलेगा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अगर इसी का मुझे राइट मोस्ट डेरिवेशन लिखना है तो वो मैं कैसे लिखूंगा, S goes to AB। हर बार मैं अब राइट मोस्ट सिंबल को रिप्लेस करूंगा, तो हर एक बार में एक ही सिंबल रिप्लेस करेंगे, एक बार में एक से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो अब अगर S goes to AB है तो
इस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल बी कैपिटल बी, राइट। फिर इस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल बी, क्योंकि दो बी जनरेट करने थे, यहां रुक गया मैं। अब इस ए से मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, स्मॉल ए कैपिटल ए, फिर से एक और ए प्रोड्यूस करना है, स्मॉल ए कैपिटल ए बी बी, और फिर फाइनली एक और ए प्रोड्यूस करना है, तो ए ए ए बी बी। तो ये जो मेरा डेरिवेशन होगा, ये मेरा क्या हो गया, राइट मोस्ट डेरिवेशन। दिस इज माय राइट मोस्ट डेरिवेशन, दिस इज माय राइट मोस्ट सिंबल रिप्लेस कर रहा है, दिस इज माय लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, अगर थ्योरी की बात करें तो ग्रामर में यही थ्योरी है जो हमें क्या पता होना चाहिए, VTSP क्या है, नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स, सिंबल्स, स्टार्ट सिंबल एज वेल एज द प्रोडक्शंस, VTSP हमें पता होना चाहिए। फिर हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई पार्स ट्री क्या होता है, कैसे ग्रामर पार्स ट्री स्ट्रिंग्स को जनरेट करने में हेल्प करता है। फिर हमें पता होना चाहिए डेरिवेशन क्या है, फिर हमें पता होना चाहिए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या है, फिर हमें पता होना चाहिए राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या है। अगर इतना थ्योरी हमें पता है तो ग्रामर पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा थ्योरी की जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो राइट, अब जब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज जनरेट करेगा ग्रामर, तो अभी फिर से वही चीज हम जो बार बार बोलते आ रहे हैं। जब फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहे थे, स्ट्रिंग्स विच आर इन द लैंग्वेज शुड बी एक्सेप्टेड, स्ट्रिंग्स विच आर नॉट इन द लैंग्वेज शुड बी रिजेक्टेड, दे शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। जब रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात कर रहे थे, तब ये बोलते थे स्ट्रिंग्स विच आर देयर इन द लैंग्वेज शुड बी रिप्रेजेंटेड, स्ट्रिंग्स विच आर नॉट देयर इन द लैंग्वेज शुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड। और अब हम बात क्या करेंगे, अगर लैंग्वेज जनरेशन की कंडीशन देखेंगे, ऑल द स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज शुड बी जनरेटेड एंड ऑल द स्ट्रिंग्स नॉट इन द लैंग्वेज शुड नॉट बी जनरेटेड। ठीक है, नॉट इन द लैंग्वेज, इन द लैंग्वेज। अगर ये बेसिक पॉइंट आप थ्रू आउट याद रखते हैं, 90% ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ इसी बेसिक पॉइंट पे बेस्ड होते हैं, और यही बेसिक पॉइंट बच्चे भूल के मैक्सिमम मिस्टेक्स करते हैं। और ये बात जितने भी लेक्चर्स में, ऑलमोस्ट हम लोग 11th लेक्चर में आज बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप इस चीज को बार बार याद करेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर देंगे, मल्टीपल टाइम्स रिहर्स करेंगे, यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो यहां तक हम बात कर चुके हैं थ्योरी की। अब हम क्या देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं जिससे हम समझें कि ग्रामर्स कैसे लिखी जाती हैं। पेपर में जो ज्यादा सवाल आते हैं वो दूसरे तरीके से आएंगे। कैसे आएंगे, यहां पे हम कह रहे हैं राइट द ग्रामर फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस के लिए हमें ग्रामर लिखनी है। पेपर में सवाल किस तरह से ज्यादा आता है, गेट के पेपर में कैसे सवाल पूछेंगे कि भाई आपको ग्रामर दी गई है, पूछा जाएगा इसकी लैंग्वेज क्या है, राइट। वो इजी क्वेश्चन है, आप पार्स ट्री बनाएं और आप देखें कि किस तरह की स्ट्रिंग्स जो हैं मेरे पास जनरेट हो रही हैं, उसके थ्रू आप लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। बेटर तरीका, मतलब तरीका क्या है, जो हमने अभी पीछे देखा, ऑल द स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज शुड बी जनरेटेड, ऑल द स्ट्रिंग्स नॉट इन द लैंग्वेज शुड नॉट बी जनरेटेड। अगेन, जैसे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस में मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन फिर से टोटली एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कहीं पे भी बहुत हाई फाई टीओसी यूज नहीं हो रही है, राइट। आप बस ये एक फंडा याद रखें, ऑल द स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज शुड बी जनरेटेड, ऑल द स्ट्रिंग्स नॉट इन द लैंग्वेज शुड नॉट बी जनरेटेड, और पार्स ट्री के थ्रू आप कुछ स्ट्रिंग्स के थ्रू ये चीज चेक कर सकते हैं। उससे ज्यादा टफर क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको लैंग्वेज दी गई है, आप ग्रामर लिखने की कोशिश करें। अगर आप ये कर लेते हैं तो वो बहुत इजीली ही कर पाएंगे आप। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो अभी हम यहां पे कुछ एग्जांपल्स इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम देखेंगे कि गेट में किस तरह से सवाल रिवर्स ऑर्डर में पूछा जाता है। अगर हमने ये कर लिया तो वो सवाल हमारे लिए बहुत बहुत इजी हो जाते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स सी। सो राइट द ग्रामर फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, L goes to a raised to power n, n is greater than equals to 0। मतलब A स्टार की बात हो रही है, राइट। अगर मैं ऐसे लिख दूं S goes to AS and as well as एप्सिलॉन, तो अगर मुझे 0 A प्रोड्यूस करने हैं, S goes to एप्सिलॉन, एक से ज्यादा एक प्रोड्यूस करना है, S goes to AS and then S goes to एप्सिलॉन। अगर 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो S goes to AS, then AS goes to AAS and then finally AA एप्सिलॉन, then X finally will go to एप्सिलॉन, राइट। कैसे, अगर मुझे AA प्रोड्यूस करना है तो S goes to AS, S goes to AS and then S goes to एप्सिलॉन, इससे प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्रामर फॉर दिस। अब बात करें a raised to power n, जब n is greater than equals to 1 है, मतलब सिंगल a तो मुझे प्रोड्यूस करना ही करना है, तो मैं एप्सिलॉन को किससे रिप्लेस कर दूं, a से। अब कंपलसरी है कि भाई एक a तो लाना ही पड़ेगा, एक से ज्यादा चाहिए तो आप इसका यूज करें, as वाली चीज का। Now a plus b star sigma star, the mother of all languages, the universal language, उसको कैसे प्रोड्यूस करें, s goes to as bs
एप्सिलॉन। ठीक है, मतलब जैसे मान लो मुझे ए बी ए प्रोड्यूस करना है तो मैं कैसे करूंगा, एस गोज टू ए बी ए प्रोड्यूस करना है तो पहले ए एस ले लिया, फिर बी एस ले लिया, फिर से मुझे ए प्रोड्यूस करना है ए बी ए, तो फिर से ए एस और फाइनली इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया। क्या सिग्मा एप्सिलॉन बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज? यस, तो मेरे इस ग्रामर से जनरेट हो जाएगा, एस गोज टू एप्सिलॉन डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं लैंग्वेज लिख सकता हूं बहुत इजीली। अब एल गोज टू ए प्लस बी प्लस, इसका क्या मतलब है, ए प्लस बी प्लस, प्लस माने एक लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो एप्सिलॉन नहीं चाहिए मेरे को, तो फिर मुझे क्या चाहिए, एस गोज टू ए एस बी एस स्मॉल ए स्मॉल बी। अब क्या होगा, इस एस से मैं सिंगल ए भी प्रोड्यूस कर सकता हूं, इस एक्स से सिंगल बी भी प्रोड्यूस कर सकता हूं। वन लेंथ की स्ट्रिंग्स, एक से ज्यादा लेंथ चाहिए, ए एस बी एस का यूज कीजिए, यू विल गेट द स्ट्रिंग। सिंपल है, जैसे कि वन लेंथ ऐसे ही हो जाएगा, टू लेंथ वाला ऐसे ही करेंगे, फाइनली हम जो है लास्ट में एप्सिलॉन की बजाय ए या बी लगाना है तो एक लेंथ पहले रुक जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ए बी ए इससे प्रोड्यूस करना है तो मैं कैसे करूंगा, एस गोज टू ए एस लगाया, एस गोज टू बी एस लगाया। ठीक है, अब फाइनल जो एस है उसको मैं डायरेक्टली ए से रिप्लेस कर दूंगा और ये वाला पार्ट में रिमूव कर सकता हूं। डन, एक लेंथ पहले रुक जाएंगे और फाइनली ए और बी यूज कर लेंगे। ऑलराइट, और इसमें वन लेंथ हैज बिकम कंपल्सरी। ठीक है, सिंपल एग्जांपल से। ठीक है, तो ये एग्जांपल से आपको एक आइडिया लगा कि ग्रामर को लिखा कैसे जा सकता है और इसके थ्रू आपको रिवर्स क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भी बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछे जाते हैं, गिवन द लैंग्वेज आपको ग्रामर लिखनी है, ग्रामर गिवन द ग्रामर आपको लैंग्वेज लिखती है। सेकंड वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है रिवर्स वे में, बट अगर आपको ये आता है तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे अगर आपने कुछ ग्रामर्स लिख ली तो उससे आपको खुद भी आइडिया लगने लगेगा कि क्या लैंग्वेज है। और अगर आपको फिर भी अगर आइडिया नहीं है तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन, ऑल द स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज शुड बी जनरेटेड, ऑल द स्ट्रिंग्स नॉट इन द लैंग्वेज शुड नॉट बी जनरेटेड। इससे ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और ये फंडा बहुत सारी जगहों पे हम लगा चुके हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। राइट द ग्रामर फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2। अगर लेंथ 2 चाहिए मेरे को तो कौन कौन से स्ट्रिंग्स होंगे? वैसे अगर मैं लैंग्वेज लिखना चाहूं तो मेरा क्या हो गया, ए बी बी ए बी बी, राइट। अच्छा, ये शॉर्ट हैंड मैंने आपको बताया था पहले, आई थिंक ये आपको आइडिया है, राइट। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने इन दोनों को मर्ज करके क्या लगा दिया बीच में, और ए गोज टू ए और ए, मतलब ये दो प्रोडक्शंस हैं। बी गोज टू बी बी और बी, तो मतलब ये दो प्रोडक्शंस हो गए। सिमिलरली जैसे मैंने यहां पे भी लिखा है इन एग्जांपल्स में, तो एस गोज टू एस एक प्रोडक्शन है, एस गोज टू एप्सिलॉन एक और प्रोडक्शन है, एस गोज टू एस एक प्रोडक्शन है, एस गोज टू ए दूसरी प्रोडक्शन है। यहां पर 4 प्रोडक्शंस है, राइट। ये शॉर्ट हैंड है इसको लिखने का, राइट। जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में देखा था कि एक ही एज पे हम ए, बी लिख दें तो 2 एजेस हैं बेसिकली। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। एस गोज टू, अब अगर मेरे को ये प्रोड्यूस करना है तो एक सिंपल सा तरीका तो ये भी हो सकता है, मैं ऐसे लिख दूं, ये भी ग्रामर सही है इसके लिए, बिल्कुल सही है, बट मजा नहीं आया, राइट, बिकॉज काफी लंबा हो जाता है ये, राइट। तो हम इसको और सिंपल कैसे कर सकते हैं, एस गोज टू, एक तरीका तो ये हो गया, एस गोज टू ए लिख दूं मैं, मतलब लेंथ 2 रखनी है, और ए क्या प्रोड्यूस करेगा, या तो ए या बी, तो ए विल गो टू स्मॉल ए और बी, इससे भी ये चीज जनरेट हो जाएगी, सिंपल। अब मैं कह रहा हूं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 2। L is equals to W, W belongs to A, B star and length of the string has to be less than equals to 2। अगर लेंथ मेरी 2 है तो फिर मैं कैसे करूं? तो इसका एक तरीका क्या होता है, और एक सिंपल तरीका जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, मैं अगेन आपको मल्टीपल मेथड्स बताता जा रहा हूं जिसके थ्रू आप सोच सकते हैं। एक शॉर्ट हैंड एक तरीका ये भी हो सकता है, आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लें, उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से मुझे ग्रामर लिखना चाहिए। जैसे अगर मैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूं, आई थिंक रेगुलर एक्सप्रेशन के हमने सेशन में हमने क्लियरली डिस्कस किया, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है a प्लस बी प्लस एप्सिलॉन डॉट a प्लस बी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, s गोज टू ए, और ये जो a है, ये जो a है, ये a, b और एप्सिलॉन तीनों पे जाता है, राइट। a, b और एप्सिलॉन तीनों पे जाएगा, करेक्ट, सिंपल है। नाउ अगर बात करें l गोज टू w, w बिलोंग्स टू a, b स्टार एंड मॉड ऑफ w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 से ज्यादा भी
चलेगा और 2 भी चलेगा। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो क्यों ना मैं फिर से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूं, उससे आइडिया लगेगा। दिस वाज माय ए, दिस वाज माय इन द प्रीवियस केस, राइट? नाउ रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा मैं? s गोज टू, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने से पहले, सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं पहले, ग्रामर नहीं लिखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा मैं? a प्लस बी डॉट, a प्लस बी डॉट, a प्लस बी स्टार। ऑलराइट, ये है सिंपल पैटर्न, ठीक है। अच्छा, a प्लस बी स्टार क्या है, a प्लस बी प्लस क्या है, a प्लस क्या है, a स्टार क्या है, इसके पैटर्न्स आप अपने माइंड में रखिए ताकि आप देख के ही बता पाए कि क्या लैंग्वेज हो सकती है, विच इज जनरेटेड बाय द ग्रामर, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी प्लस, a प्लस बी प्लस, a प्लस बी स्टार, अगर इसकी बात कर रहे हैं हम लोग तो क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स एक जैसे दिख रहे हैं। a, इसको मैं a बोल सकता हूं और इसको मैं b बोल देता हूं। तो कैसे लिखूंगा मैं? s गोज टू a b, a कहां जाता है? a और b, तो वही लिख देंगे a गोज टू a, स्मॉल a और स्मॉल b। नाउ कैपिटल B इज बेसिकली a प्लस बी स्टार। a प्लस बी स्टार कैसे जनरेट करना आता है वो हमें ऑलरेडी कैसे करना होता है वो हमें ऑलरेडी पता है। कैसे करेंगे? b गोज टू a b, b b एंड एप्सिलॉन, राइट? डायरेक्टली वही जो चीज हमने पहले लिखी, पहले लिखा था s गोज टू as bs एप्सिलॉन, अब लिख दिया b गोज टू ab bb एप्सिलॉन, ठीक है। जस्ट द सिंबल नेम हैज चेंज्ड, नथिंग एल्स हैज चेंज्ड। ऑलराइट, सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज l goes to a raised to power n, b raised to power n, n is greater than equals to 1। अगर ऐसा सिनेरियो है तो मैं क्या लिखूं? l goes to a raised to power n, b raised to power n, n is greater than equals to 1। इस केस में क्या करना है हमें? मतलब नंबर ऑफ a's should be equals to नंबर ऑफ b's। तो कैसे करें? s goes to asb स्लैश ab, सिंगल तो होगा ही होगा, ए बी तो प्रोड्यूस होना करना ही करना है, एप्सिलॉन इज नॉट देयर इन दिस लैंग्वेज। ASB एंड AB अगर ऐसा लिखा है तो इससे मेरे को A रेज़ टू पावर n, B रेज़ टू पावर n जनरेट हो जाएगा। फॉर एवरी आई एम प्रोड्यूसिंग अ B। ऑलराइट, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे वो सभी के सभी रेगुलर लैंग्वेजेस थे। ये पहला एग्जांपल ऐसा है जो कि रेगुलर नहीं है। ये रेगुलर क्यों नहीं है ये हम डिस्कस करेंगे जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि आप इसके लिए इन जनरल अगर मैं अगर वन लाइनर में बताना चाहूं तो ये इसके लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए एक एडवांस्ड ऑटोमेटा की जरूरत पड़ेगी जो कि पुश डाउन ऑटोमेटा है, जो कि हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर जो हमने ग्रामर जो लिखी है ये भी रेगुलर ग्रामर नहीं है। ये ग्रामर क्या है? एडवांस ग्रामर है, रेगुलर ग्रामर से बेटर ग्रामर है। दिस इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। तो अब ये रेगुलर ग्रामर से बेटर ग्रामर का क्या मतलब है, रेगुलर लैंग्वेज से ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का क्या मतलब है, जैसे जैसे हम लेक्चर्स में प्रोसीड करेंगे हम देखेंगे। हम एक प्रॉपर लेक्चर रखेंगे जिसमें हम चॉम्स्की हायरार्की डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हायरार्की को और डिटेल में समझेंगे, राइट। बट ग्रामर तो हम लिख ही सकते हैं, हमने ग्रामर बहुत इजीली क्लियरली लिख दिया है। ऑलराइट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अभी तक जितने देखे थे वो रेगुलर थे। ये पहला ग्रामर ऐसा है जो कि नॉन रेगुलर है, विच इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री क्या है, नॉन रेगुलर ग्रामर्स क्या है, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस क्या है, वो हम जैसे जैसे कोर्स में पढ़ेंगे देखेंगे। बट आप बेस्ड अपॉन योर नॉलेज ऑफ पार्स ट्री आप ये ग्रामर तो बहुत इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए रेज़ टू पावर एन, बी रेज़ टू पावर एम, ये रेगुलर है क्योंकि इसमें आपको नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज को मैच नहीं करना। अगेन ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल लग सकती हैं अभी, क्योंकि आपको इस चीज के बारे में बताया नहीं गया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। बट हम पहले अगर ग्रामर लिखना सीखे कि पहले हमें एज लाने फिर बीज लाने, उनके नंबर पे कोई काउंट नहीं है, तो किस तरह से लिखें हम। ऑलरेडी हमने जो अभी ग्रामर देखा था वही इसके लिए ग्रामर रहेगा। जैसे कि एस गोज टू ए बी, जो इनिशियल एग्जाम्पल मैंने लिया था, एस गोज टू ए बी, ये ए मेरा ए प्रोड्यूस करेगा, ये बी मेरा स्मॉल बी प्रोड्यूस करेगा। तो ए गोज टू स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश ए, बी गोज टू स्मॉल बी कैपिटल बी स्लैश बी। इससे मेरा पूरा लैंग्वेज जनरेट हो जाता है, राइट। वन रखना है इसलिए मैंने ए बी रखा, अगर वन नहीं होता तो मैं एप्सिलॉन भी रख सकता था, बहुत सिंपली। ऑलराइट, लास्ट है ए रेज़ टू पावर एन। सो दिस इज अगेन, दिस इज ऑल्सो रेगुलर। Why regular? We will have a separate lecture on this, don't worry. This is non-regular. Now this is again a non-regular language. Why non-regular? We'll see, but let us write down the grammar right now. हमें क्या चाहिए, A और B के नंबर सेम होने चाहिए। यहां पर भी A और B के नंबर सेम थे, बीच में मल्टीपल सीज हमें प्रोड्यूस करने हैं। तो किस तरीके से करूंगा मैं, किस तरीके से करूंगा? बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूं, S goes to नंबर ऑफ A और B मैच करने हैं, तो मैं क्या करूं, S goes to ASB कर दूं।
इससे मेरे को नंबर ऑफ ए और बी मैच हो जाएंगे। जब मुझे रुकना है, जब मुझे लास्ट सेट ऑफ ए और बी प्रोड्यूस करना है, तो मैं उसको लिख दूंगा ए बी, तब मैं उसको लिख दूंगा ए बी, और ये ए जो है विल हेल्प मी इन प्रोड्यूसिंग सीज। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट सी स्टार। सी स्टार लिखने का क्या तरीका है, सी ए स्लैश C star is C plus, because n is greater than equals to 1, even m is also greater than equals to 1. Both are greater than equals to 1 in this example. तो CA slash C, small c. तो इस तरीके से आप जो है ग्रामर्स बहुत इजीली लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट इंश्योर करता है आप नंबर ऑफ एज और बीज इक्वल रहे, ये वाला पार्ट भी इंश्योर करेगा नंबर ऑफ एज बीज इक्वल रहे। जब आपको ए और बी जितने आपको चाहिए आपने प्रोड्यूस कर लिए, उसके बाद आप इस पार्ट पे आकर के सीज को प्रोड्यूस करना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप लोग सारी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं यहां पर, राइट। अब जैसे मैंने बहुत सारी चीजें बोली बीच में, कुछ ग्रामर्स रेगुलर हैं, कुछ ग्रामर्स नॉन रेगुलर हैं, कितने तरीके के ग्रामर्स होते हैं वो हम थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे। डिटेल में जैसे जैसे हम आएंगे, आगे आगे जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेटा पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे चॉमस्की हायरार्की, तब हमें और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बट अभी हम सभी लैंग्वेजेस के ग्रामर्स के फॉर्मेट देख लेते हैं, राइट। तो फॉर्मेट अगर हम देखें, सबसे पहले टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 ग्रामर्स होती हैं जिन्हें की रेगुलर बोला जाता है, जो कि दो तरीके से हो सकती है, राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर। जब मैं बोलूंगा राइट लीनियर की तो ए गोज टू अल्फा बी बीटा होगा। अगर लेफ्ट लीनियर की बात करूंगा तो ए गोज टू बी अल्फा बीटा होगा। अब ये ए बी बीटा क्या है, ए और बी जो है ये मेरे सेट ऑफ वर्टिसेस हैं, दैट इज नॉन टर्मिनल्स हैं। अल्फा कोमा बीटा आर माय टर्मिनल स्टार। तो ये फॉर्मेट है जो कि आपको पता होना चाहिए, ऑलराइट। नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गई, इससे एडवांस ग्रामर जो कि एडवांस लैंग्वेजेस को प्रोड्यूस करती है। क्या है ये, वो हम डिस्कस करेंगे व्हेन द टाइम कम्स। ए गोज टू अल्फा इज द फॉर्मेट। ए मेरा क्या हो सकता है, कोई भी वर्टेक्स, मतलब कोई भी नॉन टर्मिनल, और अल्फा मेरा क्या हो सकता है, बी यूनियन टर्मिनल का स्टार, एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्टिसेस एंड टर्मिनल्स, ठीक है। ये मेरा बेसिक नॉलेज हो गया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में। देन आता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, जिसे कि हम क्या कहते हैं, टाइप 1 ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इज टाइप 1 ग्रामर। इसमें मोड ऑफ इसमें क्या है, अल्फा गोज टू बीटा, जहां पे अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या रहेंगे, वी यूनियन टर्मिनल प्लस, और मोड ऑफ अल्फा हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ बीटा, मतलब हमेशा आप एक्सपैंड करेंगे या सेम लेंथ के रहेंगे, राइट। सो मोड ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ बीटा। लास्ट इज अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर विच इज टाइप 0 ग्रामर। अब इसमें रिस्ट्रिक्शंस हटा देने हैं। पहले तो मैंने क्या रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, मोड ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ बीटा, वो यहां पे नहीं है, अल्फा इज गोइंग टू बीटा ओनली हियर आल्सो। दूसरा रिस्ट्रिक्शन मैंने यहां पे क्या किया, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड तो वी यूनियन टर्मिनल प्लस ही रखना पड़ेगा क्योंकि एप्सिलॉन कैन नॉट गो एनीवेयर, बट राइट हैंड साइड को मैं एप्सिलॉन भी रख सकता हूं, इसलिए मैंने वी यूनियन टर्मिनल स्टार रख लिया मेरे पास, राइट। तो ये ग्रामर्स के मैंने जनरल फॉर्मेट डिस्कस कर लिए, आपको आइडिया होना चाहिए। बट कभी भी जैसे गेट में क्वेश्चन आए, आप से पूछा जाए कौन सी लैंग्वेज है, आप उससे स्ट्रिंग्स जनरेट करके लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके बताएं ये कौन सी टाइप है। जब हम बात कर रहे हैं ये टाइप्स की, ये बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में, ससिंक्ट फॉर्म में ग्रामर्स हम बोल सकते हैं कि बाय ससिंक्ट फॉर्म में अगर ग्रामर है मेरी, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म से मेरा मतलब है कि उससे हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, तब मैं बोल पाऊंगा कि फॉर्मेट देखते ही मैं बता दूं कौन सा ग्रामर है। लेकिन अदरवाइज मैं फॉर्मेट देखते ही ग्रामर का टाइप नहीं बता सकता हूं। तो बेटर क्या है, आप उससे स्ट्रिंग्स को जनरेट करें। स्ट्रिंग्स जनरेट करने के बाद आपको पता लगेगा कि लैंग्वेज क्या है, और उस लैंग्वेज के थ्रू बता दीजिए कि कौन सा ग्रामर है, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो जैसे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट होगा, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जनरेट होगा, ठीक है। बाकी डिटेल में हम जैसे हम चॉमस्की हायरार्की के लेक्चर पे जाएंगे तो आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को, ऑलराइट। लास्ट हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं गेट का, जिससे हमें समझ में आए कि क्वेश्चंस किस तरीके से और पूछे जाते हैं ग्रामर्स पे, जो रिवर्स टाइप है वो भी हम एक बार देख लें। अगेन ये पूरा एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। आइडेंटिफाई द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग ग्रामर वेयर s इज द स्टार्ट वेरिएबल, s गोज टू xy, x गोज टू axa, y गोज टू ayb, एप्सिलॉन, और पूछा है कि क्या लैंग्वेज है आपको बताना है। तो क्लियरली अगर आप देखें तो s जो है इनिशियली मेरा xy पे जाता है, उसके बाद x जो है वो मेरे को a स्टार प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, axa, a स्टार नहीं a प्लस, एक a तो पक्का प्रोड्यूस होगा, a प्लस, राइट, a प्लस। अब अगर मैं बात करूं y की तो y क्या करता है, a y b प्रोड्यूस करता है, मतलब नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b इक्वल प्रोड्यूस करेगा। ये क्या है, a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उस तरह की चीज प्रोड्यूस कर रहा है। अभी हमने देखा ये पैटर्न।
तो ये ए बी के इक्वल नंबर प्रोड्यूस करने में मुझे हेल्प करेगा। तो इन जनरल अगर टोटल नंबर ऑफ ए बी अगर हम देखें तो कितने होंगे, ये वाला पार्ट हमेशा एक एक्स्ट्रा ए प्रोड्यूस तो पक्का करेगा, एक से ज्यादा एक्स्ट्रा भी कर सकता है प्रोड्यूस। और ये जो बी है वो 0 भी हो सकता है अगर मैं डायरेक्टली वाई को एप्सिलॉन कर लूं। तो अगर मैं इसको ओवरऑल में बोल रहा हूं ए रेज टू पावर एम एंड बी रेज टू पावर एन, तो मेरा एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि वाई जो है एप्सिलॉन को भी जा सकता है, वाई मेरा एप्सिलॉन को भी जा सकता है। लेकिन जो m है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहां से मुझे एक a तो पक्का ही मिलेगा थ्रू x, राइट। और n और m में अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो ये वाला पार्ट इक्वल नंबर ऑफ a और b प्रोड्यूस कर रहा है, ये पार्ट एक्स्ट्रा एक a तो पक्का प्रोड्यूस कर देगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा m विल बी ग्रेटर देन n फॉर श्योर। तो कौन सा ऑप्शन है जो मैं बात बोल रहा है, m इज ग्रेटर देन n, ये दोनों ऑप्शंस बोल रहे हैं। n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये वाला ऑप्शन बोल रहा है, तो ऑप्शन इज सी। इसने ये नहीं लिखा m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये ऑब्वियस है। जब n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 m ग्रेटर देन n है तो ऑब्वियसली n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 भी रहेगा। तो बेसिकली एप्टीट्यूड बेस्ड हमने इसको सॉल्व कर लिया, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पार्स ट्री का बेसिक आइडिया आपके पास है, बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और हमने इससे टफर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिससे डायरेक्टली ग्रामर कैसे लिखना है वो हमने सीख लिया। तो ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे हमारे, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप टू राइट डाउन योर डाउट्स, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट ग्रामर्स। So we are right now here on the topic of grammars. We have already finished finite automata as well as regular expressions, and we have today finished the topic of grammars also. In the next session we are going to cover push down automata, and more specifically we will discuss deterministic push down automata, right? So these are the next few sessions. So that's all about this session, guys. I'll see you guys in the next session with some more details on push down automata. Thank you so much.